Hello everyone, today we are starting a syllabus of class 9 ICSE board. We are using the book Selena. We are starting with the chapter number 4, that is expansion. First we need to understand what is the meaning of expansion. Expansion मतलब होता है किसी चीज को ओपन करके लिखना. जैसे as we study in the earlier classes हमें कुछ क्वेश्चंस मिलते थे x plus a is multiplied with x plus b. तो इसको हम कैसे ओपन करते थे? We can open it by using x is multiplied with the second bracket, that is x plus b, then we are plus a, then a is multiplied with x plus b. After that it will become x is multiplied with x, that will become x square plus bx plus a is multiplied with x, ax plus ab. Now this is the expansion form, यानी कि किसी चीज को जो फैक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है उसको हमें एक्सपेंड करके कुछ इस फॉर्मेट में लिखना है, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंशन. अब इसके लिए हम कुछ आइडेंटिटीज यूज करते हैं. वी आर यूजिंग सम आइडेंटिटीज, सम फॉर्मूलेज. आई एम राइटिंग द फॉर्मूलाज हियर. यू हैव टू लर्न द फॉर्मूले, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूले टू एक्सपेंड द गिवन क्वेश्चन. फर्स्ट आइडेंटिटी इज if it is given a plus b whole square, we can write it as a square plus b square plus twice of ab. The second identity is a minus b whole square. It is open as a square plus b square minus twice of ab. The third identity is a square minus b square. That will become a minus b and a plus b. Fourth identity is a plus b whole cube. It is equals to a cube plus b cube plus 3ab a plus b. Fifth one is a minus b whole cube. That will equals to a cube plus, that is a cube minus b cube minus 3ab a minus b. Then sixth identity is, if it is given that a cube plus b cube plus c cube, that will written as 3abc. Okay, now the seventh one is a plus b plus c whole square is equals to a square plus b square plus c square plus twice of ab plus twice of bc plus twice of ca. These are the 7 identities we are using in this chapter, that is expansion. First you have to learn all these identities, then you can solve the question. As we taken from the first exercise में हम सिर्फ ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे. a plus b whole square is equals to a square plus b square plus twice of ab. Second one is a minus b whole square equals to a square plus b square minus twice of ab. Now you just note it down and learn these formulae. Exercise 4a of Selena book. The first question is given that find the square of, first question, first part, it is given that twice 2a plus b. We need to find the square of that. So this 2a is equals to a and b. We are having the a plus b whole square is equals to a square plus b square plus twice of ab. So that will equals to a square, that means 2a square plus b square plus twice of ab. Here a is twice of a and b. That will become 2 ka square, that is 4. A square is a square plus b square plus 4ab. That will be the expansion for the first 2a plus b whole square. In the same way we have to find each and every square. Now the second question is use identity to evaluate. First part is, it is given that 101 whole square. तो इसको कैसे करेंगे? 101 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 plus 1 whole square. Now we can use the identity a plus b whole square. That will become a square. A square is what? 100 square plus 1 square plus twice of 100 into 1. That will become plus 1 plus 200. After adding, that will become 10201. 10
201. This is the answer of 101 square. Question में दिया हुआ है use identity to evaluate. Now the third question is same. You can use a plus b whole square, a minus b whole square. Now we are doing the question number 5th. Question number 5th में हमें क्या दिया हुआ है? The question 5th is a very simple question. You just use the given data to find the unknown value. It is given that a plus b. Question number 5th. It is given that a plus b is equals to 7 and ab equals to 10. We have to find what we have to find. We have to find the value of a minus b. तो हमारे पास a plus b है और ab की वैल्यू दी हुई है, तो हमें ये फाइंड करना है. तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, वी आर जस्ट यूजिंग. एक तरीका तो ये हो सकता है कि इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो. अगर आप इसको स्क्वायर करते हो, दिस इज द गिवन स्टेटमेंट. नाउ a प्लस b इज इक्वल्स टू 7 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बिकम a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर. So after opening this, that will become a square plus b square plus twice of ab is equals to 49. We know the value of ab. AB is given that a square plus b square plus twice of 2 into 10 equals to 49. So from here a square plus b square is equals to 49 minus 20. That will, so from here a square plus b square is equals to 29. This is the equation number 1. अब हमें क्या फाइंड करना है, we have to find the a minus b. अगर हम a minus b फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला बना देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab इज इक्वल्स टू 29 माइनस ट्वाइस ऑफ ab. ट्वाइस ऑफ ab हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ माइनस हमने किया है. जैसे हम प्लस 5 दोनों साइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने माइनस टू ए बी दोनों साइड एड अप कर दिया. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बिकम a माइनस बी होल स्क्वायर, बिकॉज इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. दैट विल बिकम a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29 इंटू ट्वाइस ऑफ ab. ab की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो दैट विल बिकम 29 माइनस 20. तो फ्रॉम हियर a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया. जब यहां से स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट विल बिकम a माइनस बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 9. सो इट विल बिकम a माइनस बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3. दैट इज द गिवन आंसर. ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन आंसर हो जाएगा. ठीक. अब इन द सेम वे वी कैन सोल्व द क्वेश्चन नंबर. नाउ क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 and 9 इसी तरीके से होने हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट a प्लस 1 by a इज इक्वल्स टू 6 एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0. हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट पार्ट इज a माइनस 1 अपॉन a. इट इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस, दैट इज a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर. तो हमें गिवन है a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू 6 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0. a यहाँ पे 0 नहीं है. फाइंड a माइनस 1 अपॉन a एंड a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट गिवन स्टेटमेंट जो दी हुई होती है उसको ही हमें यूज करना है. यहाँ पे हमारे पास क्या है, a plus 1 upon a is equals to 6. This is the given statement. अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. सो इट विल बिकम a plus 1 upon a whole square is equals to 6 square. When we open this bracket, that will become a square plus 1 upon a square plus twice of a into b. b is 1 by a equals to 36. तो यहां से हम निकालेंगे a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2, a is cancel out with a equals to 36. So from here a square plus 1 upon a square
इज इक्वल्स टू 36 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने क्या लिखा? इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या फाइंड करना है? a माइनस 1 अपॉन ए। तो हम क्या करेंगे? a माइनस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर इसका स्क्वायर हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू 1 अपॉन ए, दैट विल बिकम a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज माइनस ट्वाइस ऑफ ab माइनस 2। अब from equation first we are putting the value of a square plus 1 upon a square, that is 34 minus 2, that will become 32। तो यहां से a minus 1 upon a whole square is equals to 32। ये क्या हो जाएगा? 32 के इक्वल हो जाएगा। अब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, अब यहां से हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो इसके बाद जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट विल बिकम a माइनस 1 अपॉन a इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 32। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, ये है हमारे पास। नाउ सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा है? सेकंड पार्ट में हमें निकालना है a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। इसको हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b a प्लस b। तो a माइनस बी दैट इज a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a। तो a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू आई थी हमारे पास, दैट इज a माइनस 1 अपॉन a प्लस माइनस रूट 32 इंटू a प्लस 1 अपॉन a हमें गिवन था, दैट इज 6। सो दैट विल बिकम प्लस माइनस 6 रूट 32। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो हमें सॉल्व क्या करना है? हमें जो गिवन स्टेटमेंट है उसको यूज करना है टू फाइंड द आंसर। इट इज गिवन दैट a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू 6 and a is not equals to 0. Find a minus 1 upon a and a square minus 1 upon a square. So first we are using the given statement. सबसे पहले स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद हमने a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, उसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब फर्स्ट पार्ट में उसने दिया a माइनस 1 अपॉन a एंड ये हमें निकालना है। तो 1 माइनस a माइनस 1 अपॉन a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर इसको हम स्क्वायर को ओपन करके लिखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2a इंटू a। अब ये वैल्यू हमने क्यों निकाली है? ताकि हम इसका स्क्वायर रूट कर सकें और इसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। अब जब ये इसके इक्वल होगा तो यहां से a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे जो हमने फाइंड की थी। आफ्टर दैट वी विल गेट द आंसर। उसके बाद सेकंड में हमें दिया है, सेकंड पार्ट में a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर, that should be equals to a minus 1 upon a, second bracket a plus 1 upon a, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे then we will get the required answer। इसको हम आगे भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे रूट 32 को अगर हम लिखें, रूट 32 के फैक्टर हो जाएंगे 16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा। इसको हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 रूट 2, तो ये हो जाएगा 24 रूट 2, इसको लिखेंगे प्लस माइनस 24 रूट 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम एज इट इज, वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 12। प्लीज पोज द नाउ a square minus 3a plus 1 is equals to 0, a is not equals to 0, we have to find the value of a plus 1 upon a and a square plus 1 upon a square। हमें इसको फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3a, a को हमने ट्रांसपोज कर लिया टू दैट साइड। अब पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय a ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ क्या किया? a से डिवाइड कर दिया, सो इट विल बिकम a स्क्वायर अपॉन a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू 3a अपॉन a। a is cancel out with a, that will become a plus 1 upon a is equals to 3। फर्स्ट हमें यही वैल्यू निकालनी थी a plus 1 upon a। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। तो दोनों साइड इसका हमने
स्क्वायर कर दिया फर्स्ट इक्वेशन का, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स में तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन किया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू 1/a इज इक्वल्स टू 9। a इज कैंसिल आउट विद a, तो सो दैट विल बिकम, हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2, प्लस 2 को उस साइड लेके जाएंगे दैट विल बिकम -2। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। इन द सेम वे वी हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ हमारे पास यही क्वेश्चंस हैं। आफ्टर दैट वी विल डू एक्सरसाइज 4b। 4b में हमें सिंपल यही फॉर्मूले यूज करने हैं, a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब। अब इसमें हमें क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करना है, जैसे हमने अभी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू द ओपन द क्यूब फॉर्मूला। इसमें हमें सिर्फ एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जैसे हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3abc लिख सकते हैं। ठीक, नाउ एक्सरसाइज 4b। 4b के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। 4b में हमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द क्यूब ऑफ, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, दैट इज 3a माइनस 2b। 3a माइनस 2b का हमें क्यूब सोल्व करना है। अब क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब, सॉरी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। तो इसी में हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। a क्या है यहाँ पे 3a, दैट मीन्स 3a क्यूब माइनस ट्वाइस ऑफ b क्यूब माइनस 3 इंटू 3a इंटू 2b ब्रैकेट 3a माइनस 2b। जब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे दैट विल बिकम 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 3 3 से 9, 9 2 जा 18ab 3a माइनस 2b। ये वाला ब्रैकेट ओपन करना चाहो तो कर सकते हो, वरना यहां तक भी जोड़ दोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 47, where a is not equals to 0। हमें फाइंड क्या करना है, we have to find a plus 1/a एंड सेकंड है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। हमें a प्लस 1/a फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में a क्यूब प्लस 1/a क्यूब फाइंड करना है। गिवन है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 47। तो हम क्या करते हैं, गिवन स्टेटमेंट को ही यूज करते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो पहले हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 किया इज इक्वल्स टू 47। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a प्लस 1/a की वैल्यू चाहिए। तो यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम इस साइड ले लेंगे, प्लस 2 हम मूव करेंगे अदर साइड में। अब प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a, a को a से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम 2 को लिख सकते हैं a इंटू 1/a इक्वल्स टू 47 प्लस 2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बना, a प्लस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 7। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, सेकंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। जैसे हमारे पास a प्लस 1/a की वैल्यू आई है, अब इसको हम a प्लस 1/a होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3a इंटू 1/a
a प्लस 1 अपॉन a। ये लिख सकते हैं वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब। a प्लस 1 अपॉन a का क्यूब यानी कि 7 का क्यूब वैल्यू पुट कर दो a प्लस 1 अपॉन a की, दैट विल बिकम 7 क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब प्लस a इज कैंसिल आउट विद a, 3 इंटू a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू थी 7 इंटू 7। अब दैट विल बिकम 7 क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है? 343 इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब प्लस 21। तो यहां से a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब विल बी इक्वल्स टू 343 माइनस 21, दैट विल बिकम 2 2 एंड 3। सो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 322। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमें ऐसे ही करना है, 5th भी हमें ऐसे ही करना है, 6th 7th 8th all the questions are same till question number 10। अब क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 4b। ये क्वेश्चंस आप करके देखना, अगर नहीं आएंगे देन यू विल मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। I will mention my number also, so you can mention in the comment box, then you will get the answer. Now question number 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ है? That is 2x minus 3y equals to 10। 2x minus 3y is equals to 10 and xy is equals to 16। Find the value of, हमें क्या फाइंड करना है? 8x क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब। क्वेश्चन सेम ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। डिफरेंट इन द सेंस यहाँ पे 8x क्यूब दिया है माइनस 27, तो ये क्या है? इन दोनों का क्यूब है। अगर हम 2x माइनस 3y का क्यूब करते हैं दोनों तरफ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, सो दैट विल बिकम 2x माइनस 3y क्यूब इक्वल्स टू 10 क्यूब। सो व्हेन वी ओपन द फॉर्मूला a क्यूब दैट इज 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1000। नाउ 2x क्यूब दैट विल बिकम 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 3 टू 6, 6 3 18xy, 2x माइनस 3y की वैल्यू हमारे पास है 10 इक्वल्स टू 1000। नाउ 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, अब हमें सीधी सीधी वैल्यूज पुट करनी है। 18 इंटू 16 इंटू 10 इक्वल्स टू 1000। सो इट विल बिकम 18x क्यूब माइनस 27y क्यूब इक्वल्स टू 1000। माइनस माइनस विल बिकम प्लस। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग 18 इंटू 16, that will become 2880। दोनों को ऐड करेंगे, that will become 3880। this is the required value of 8x cube minus 27y cube। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो सेकेंड एक्सरसाइज में कोई भी टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल है 4a 4b में ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। So till then, thank you very much.